Hello everyone, I am Sharad Kumar and I am an IT professional based in UK. But I am not here to talk about my profession. Instead, the desire behind coming with this channel is to tell you the story of Mango people, जिसे हम आम जनता भी कहते हैं. Those who have fought various big and small battles in their life to make a place for themselves in this world, where their today is better than yesterday. So my guest for tonight is Kunal Krishna, whose journey I have tracked for a large part of last 3 decades. Though with a humble beginning and start as an average student by all means, what he has achieved in his professional and personal life is commendable. Kunal is a computer science graduate from JP University of Information Technology and currently he is working as engineering manager in one of the IT and retail giants of the world, that is Amazon. He is part of the AWS team, which is taking the technology world to a different level. He is innocent but astute, very calm but aggressive when needed. So let's go and hear more directly from him. So how are you? Good, good. How are you? सब बढ़िया मजे में. So Kunal, uh, for my audience, if you can give a brief introduction about yourself, and then we can take it from there. Sure. Yeah. So, yeah, I'm Kunal, and I have done my engineering in computer science in the year 2007. I passed out from JP University of Information Technology, which is located in Solan. And then I have been, I have worked across multiple companies, starting from my career with a service company, and then moving to a captive company, and then to product, then product. So in my current role, I am working as a software development manager with Amazon. So I'm part of the AWS org, where we are trying to build something for in the retail space. And where you are currently based? I'm based out of Bangalore. So for my audience, yeah, I am fully aware of it, but I'm asking these questions for those who don't know Kunal. जैसा आपने अभी मुझे बताया कि आप currently AWS में मैनेजर हैं और अभी बैंगलोर में रहते हैं, बट अगर हम समय को थोड़ा पीछे ले जाएं और ये बात करें कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से हैं, और हम्म, अ, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं. मेरा होम टाउन जो है वो मुंगेर हुआ. So Munger is a small town in Bihar. Though a lot of people might know because the first yoga school was there. So International School of Yoga was established there. So Munger Okay. is famous for that, and there are certain other mythological relevance of that place, for which that place is widely known. So Mm-hmm. I started my life from there. So my father started my job there in one of the nationalized banks, and that's where, and since Papa was in bank, so it was a very transferable job. So I would say I have moved across a lot of cities in my initial days. Okay. So I spent my very early, like childhood in Dhanbad, and then I moved to Bhagalpur, then subsequently to Sahibganj, then finally to Patna. I think I was in third standard when I moved to Patna, and since then until plus two I have been in Patna. So all my education and everything was there. Though I think no, my father was posted outside also at in various periods during that time. So yes, obviously I think it was again a challenging task in itself for my for my mother, and we were there just for the education purpose, nothing else. So digging a bit more into this, like right now, probably you are in a very good professional space. Uh, Going to the student life, initial student life, were you always a very studious student, high in merit, and how it was? No, no, it was never the case. I was never a meritorious student. I was pretty much average student, right? Very, very average student. Like, all my grades, until 10 was pretty normal. Like, 60s, 70s, those were my area where I used to play, right? 80 आ गया तो मतलब बहुत आ गया, right? It was like, a gala thing for me कि
80 आ गया। कुछ पार्टियां So भी I होती think थी। हाँ कुछ पार्टियां भी होती थी। No, today I feel like obviously grades are not the true resemblance of how and what you are or what you can become. So going back to school days, I think उस समय so one thing that I was very fascinated about computers, like so Okay. my programming was very strong since I think when we started learning Logo. So Logo was the first language that we learned back in I think standard I think sixth or seventh, something around somewhere around that time frame. Mm-hmm. So Logo was something where you used to draw those images. So it was like RT, LT, RT 90, LT 90. So those kind of images that used to come. So that was very fascinating. And obviously like उस समय पे computers एक ऐसा था जो कि it was evolving in the nation, in the country as and बहुत privileged कह चीज थी. सकते हैं So कि obviously एक लग्जरी थी कंप्यूटर का हाँ होना, कंप्यूटर। बहुत ज्यादा हाँ. मतलब लैब्स में भी अगर आपको 1 घंटा मिलता था, राइट, 1 या 2 घंटे मिलते थे आपको पूरे वीक में, तो आप मतलब दैट वाज समथिंग जो आप उसको यूटिलाइज करना चाहते थे उस समय. इट वाज वेरी लेस. आई मीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स वर अ डिस्टेंट ड्रीम. मतलब उस समय था ही नहीं. एंड नॉट ओनली इट वाज मेरे पास ही नहीं, मतलब था ही नहीं. लोगो वाज माय फर्स्ट लैंग्वेज, सो दैट definitely computer attracted me at that time. And then from Logo to basic to then C, C++, and then so on. So इस तरीके से जर्नी एक शुरू हुई थी. बट अदर देन कंप्यूटर साइंस आई थिंक मेरे आई मीन बाकी सब्जेक्ट्स वेर जस्ट ओके ओके. आई मीन बस होता है ना पढ़ के पास होने टाइप वाला, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता था किसी और चीज में. ठीक है, ऑब्वियसली देयर वेर हाइज एंड लोज इन सब्जेक्ट्स. एक टाइम पे था जब मैथ्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग अप टिल I would say तो 9th 10th definitely maths was something which used to interest me. लेकिन 11th 12th में वो कहीं इंटरेस्ट पूरा लूज. मतलब द मोमेंट उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आया, मतलब आई कंप्लीटली लॉस्ट इट. आई मीन मतलब somehow I was not able to connect to that. एक बड़ी, जब मैं इस डिस्कशन के लिए थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन बुक से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने में मिली कि वो 300-350 पन्नों की किताब, उसमें शायद आपने कभी 2 पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़ा। हाँ कभी नहीं. दो दो चार पन्ने के बाद मतलब होता है ना कि मतलब मुझे इंटरेस्ट आता ही नहीं. और वो 2 4 पन्ने मैंने लगता है ना 100 बार पढ़े होंगे. राइट, 100 बार अच्छा। वो 2 4 पन्ने पढ़े हुए कि आज इस बार तो होता है ना शुरू से शुरू करना है और एकदम खत्म ही करके छोड़ना है. बट देन वो कभी होता नहीं था. तो ऑब्वियसली आई न्यू ये 11th 12th की बात है. तो वो कभी वो आया ही नहीं. जबकि ऑन द सेम साइड अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो 11th 12th दोनों में आई थिंक मेरे नंबर्स 99 और 100 थे. Right? मतलब दिस हम्म। मतलब माई कंप्यूटर साइंस माई प्रोग्रामिंग वाज एकदम पिन परफेक्ट. मतलब उसमें आप गलतियां नहीं निकाल सकते हो. एवरीथिंग ऑल द मुझे एज कहने में केसेस थोड़ा सब सा कुछ. बुरा लग रहा है, बट जो कुणाल बोल रहा है वो सच है कि हाँ, उसके 99 और 100 आते थे। हाँ. वो एक ऐसा लेकिन सब्जेक्ट था बाकी जिसमें बाकी बाकी जब देखो तो मतलब फिर वही अ, 50 60 घीस तीर के पास कर रहे हैं उस टाइप वाली उनको बात थी. उनको देख के मुझे संतुष्टि होती थी। वो वो हाँ वो 3 इडियट्स वाला है ना, जो दोस्त फेल कर जाए तो बुरा लगता है, बट वो टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा बुरा बहुत लगता है। ज्यादा बुरा लगता है. हाँ तो जो जिसके सब हर सब्जेक्ट में 50 आ रहे हो, 60 आ रहे हो, 70 आ रहे हो, और एक में हमेशा 99, तो हाँ. पर ठीक है। 50 60 70 भी ज्यादा ही बोल दिया. मतलब आई रिमेम्बर कि मतलब जब +2 के जब मेरे रिजल्ट्स आए थे तो आईसीएसई बोर्ड से मैंने अपना +2 किया था. बोथ मतलब 10th भी मेरा आईसीएसई था, देन 12th भी आईसीएसई था. हम्म। तो सेंट कैरेंस से पढ़े थे हम लोग. तो उस समय 12th के बाद आई रिमेम्बर कि मेरे थोड़े से ना मैथ्स में नंबर कम थे. इतने कम थे कि मतलब ये लग गया था कि इंजीनियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है करने में उसको. क्योंकि एक आई थिंक एक बेसिक कट ऑफ चाहिए होता है आपको. राइट, कहीं से भी कुछ नहीं. राइट, इंजीनियरिंग के भर भर के एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए बट फॉर्चुनेटली होता है ना कि इट वाज डिफिकल्ट. तो आपने आपने जैसा बताया, यू आर अ वेरी प्रिटी एवरेज स्टूडेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस नथिंग यूज्ड टू एक्साइट यू। दूसरा एक एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. उस समय जिस माहौल में हम लोग बड़े हो रहे थे, पटना का वो माहौल था. राइट, एंड देन एक जियो पॉलिटिकल बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो हुआ करता था.
प्री 2000 एरा की अगर मैं बात करूं तो बिहार से सबने देखा हुआ है, मतलब इट्स नथिंग न्यू जो मैं मतलब कुछ बताऊंगा। जो भी उस एरा में जिसने भी वहां पे पढ़ाई करी है, दे नो कि क्या लिमिटेशंस होती थी, कैसे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज होते थे, राइट। तो मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज, इसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं उस समय। ना तो इंटरनेट हुआ करता था, इंटरनेट अगेन वाज अ वेरी प्रिविलेज थिंग। आई थिंक 200 इट वॉज रुपये या, मोर देन अ लग्जरी। हाँ 200 या 400 रुपये घंटा टाइप का कुछ उस समय हुआ करता था। मैं 2001 टू 2002 की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आई थिंक, और वो टिपिकली वो डायलअप से चलता था, वो जो BSNL का आता था, एंड स्पीड वाज बेयरली एनीथिंग। सो दैट वाज रियली एन एरा वेयर आपके पास कोई एक्सपोजर था नहीं वहाँ पे। तो एवरी अदर गाई जिसको आप देखते थे, वो या तो इंजीनियरिंग मेडिकल इनकी तैयारी कर रहा होता था, या फिर वो दिल्ली चले जाते थे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, राइट। सो करियर ऑप्शंस नहीं थे। पॉलिटिकली उस समय चीजें बहुत ज्यादा हाइप पे थी, राइट। मतलब आई वुड बी ऑनेस्ट, लाइक उस समय मैं भी, तो है ना जो, अब ऑब्वियसली जब आप पटना में उस समय के जो भी बच्चे हैं, तो यू गेट दैट बॉन्डिंग विथ योर कॉलोनी फ्रेंड्स, राइट। तो कॉलोनी वाले हो गए, मोहल्ले वाले हो गए, तो इनके साथ बहुत कॉमन पैटर्न था उस समय कि पीपल यूज टू गो इनटू दिस पॉलिटिकल रैलीज एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। मतलब हम्म। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनको आप आज आप पॉलिटिकल वर्कर्स कहते हो, वो उस टाइम पे ऐसे ही अवेलेबल होते थे। मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है तो चलो 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 ठीक है, कहीं तो चलना है, बस भीड़ इकट्ठा करना है। आपने काफी सारी हाँ तो मैंने पॉलिटिकल बहुत, रैलीज। हाँ मैंने बहुत पॉलिटिकल रैलीज अटेंड की हैं, बहुत होता है ना चीज़ों के, मतलब मेरे क्लोज करीबी लोगों ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया था, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो डेफिनेटली मतलब एक पढ़ाई का बहुत बढ़िया माहौल नहीं मिलता था। So Kunal, you just now said that when you were growing up, you were only three options were made available: medical, engineering, or IAS. So I get to understand that, okay, you decided for an engineer to become an engineer. But why computer engineer or software engineer? तो एक तो ये बहुत Mhm. फैसिनेटिंग था, प्लस दूसरा क्या था कि थोड़े फादर के फ्रेंड सर्कल में जो और भी थे जिनके बच्चे, ठीक है, इंजीनियरिंग करके आगे बढ़े थे, ठीक है, देवर ऑल्सो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स। तो पता था कि मतलब एक बहुत आपको एक अच्छा करियर मिलेगा, राइट, इफ यू आर डूइंग डूइंग दिस थिंग। दो आई न्यू पीपल जो कि दूसरे बैकग्राउंड से भी थे, बट समहाउ आई थिंक कंप्यूटर साइंस लुक्ड वेरी फैसिनेटिंग टू मी। और एंड देन ऑब्वियसली एक जो मेरा एक पुराना इंटरेस्ट था कि programming was one of my core forte, so I think that helped me to pick up computer science as a subject during engineering. अच्छा, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की, और Right. आपका so आपका so कॉलेज लाइफ कैसा था? so engineering मैंने की JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So this was an institute established by the JP group, and it was a state university based in Solan. So they had multiple branches. So Noida was their first campus. Then they opened Solan, and then they opened a campus in Madhya Pradesh, a place called Guna. So ये इनके 3 कैंपस ग्रेजुअली ओपन हुए थे। तो मैंने जब एडमिशन लिया तो सोलन वाज one of my first options, though I was getting a non-computer science seat in the Noida campus also, but then I had to pursue। तो कंप्यूटर साइंस लेके हुआ कि नहीं चलो वहाँ पे ही मतलब जाते हैं। कमिंग टू कॉलेज लाइफ, आई थिंक जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की होती है, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम वाज फ्रॉम some electronics like subject I remember, and then I got zero there, right? So मतलब clearly it was जीरो a मीन्स shocker काफी कि कम। zero means काफी zero, नहीं zero, जीरो मतलब, हाँ zero literally zero, yes। ओके, मतलब ऐसा So नहीं कि my, कम नंबर आए, कम नहीं, बट जीरो, हाँ जीरो इट है। वाज जीरो। ओके। जीरो आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट था, मतलब क्लियर जीरो था एकदम, मतलब उसमें कुछ आता ही नहीं था मुझे लिटरली। तो वो था। एंड देन उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में एक और शॉकर लगा कि एक कंप्यूटर साइंस का पेपर था, ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था। सी उसमें मेरे ग्रेड्स प्रोग्रामिंग। बहुत सी था, हाँ शायद, उसमें मेरे ग्रेड्स बहुत कम आए थे फॉर सम रीजन। मतलब आई रियलाइज कि देयर वर फ्यू बायसेस दैट आई वाज एबल टू सेंस, जिसके कारण ये ग्रेड्स आए थे। तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट वाज अगेन 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 5.2 या कुछ तो था, मतलब एकदम बहुत, मतलब इट वाज अ डिजास्टरस सेमेस्टर फॉर मी। कॉलेज में भी आई वाज ऑलवेज इन 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 दोज ग्रेड्स ओनली। वो
वो हाँ, क्या हुआ कि लास्ट, हाँ, मुझे याद है कि वो 5.6 या 7, 5.2 या 5 ऐसी और था कुछ, हाँ। वो हाँ, रिजल्ट आने के बाद हम लोग पटना में कोई सिनेमा देखने के लिए गए थे, क्योंकि अच्छा, टिकट ले लिया है तो अब उसको देखना तो है बर्बाद ही। क्यों करना है। अब ये 5.6 तो 5.7 हो नहीं सकता है। हम्म। हाँ, बट ठीक है। हाँ, नहीं ये था कि मतलब कॉलेज में भी ये रियलाइज हुआ, बट देन कॉलेज एक हमारा क्या था कि पूरा कैंप ऑन कैंपस था कॉलेज, मतलब हम्म। हॉस्टल वगैरह सब एवरीथिंग वाज इन द कैंपस, एंड देन ये आबादी से बहुत दूर था, हाईवे से बहुत दूर था ये कॉलेज, राइट। 3 किलोमीटर दूर था, और देर वॉज कोई साधन नहीं था आने जाने का। आई रिमेम्बर कि उस समय अगर किसी को जाना होता था तो जो वाटर टैंकर्स होते थे, दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी मोड ऑफ सोर्स, ट्रांस मोड मोड ऑफ ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। ना उस समय ऑटोज चलते थे, ना कुछ चलते थे, इक्का दुक्का टैक्सीज चलती थी, एंड दे वर वेरी कॉस्टली, राइट। हम्म। सो आई रिमेम्बर कि वो एक बहुत डिफिकल्ट, मतलब इट वाज डिफिकल्ट टू कम्यूट। तो यू कैन ये अच्छा भी था बुरा भी था। अच्छा इसलिए था कि चलो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो आपके पास बहुत टाइम है, राइट, एवरी डे यूज टू गेट आपको कैंपस में ही रहना है तो टाइम की कमी नहीं है आपके पास। बुरा ये था कि ठीक है, एट टाइम्स यू फील कि जाना है तो दैट वाज अ स्ट्रगल दैट यू हैड टू फेस, राइट। बट देन ये था कि कॉलेज डेफिनेटली एक माहौल तो अच्छा प्रोवाइड किया था कॉलेज ने, मतलब cutting down all the possible distractions where you can actually focus on something. And then I know, like, folks have studied a lot, utilize those time, utilize those period, though मैं उसको उतने अच्छे से मैं यूटिलाइज आई वुड से होलिस्टिकली नहीं कर पाया। तो कॉलेज में भी मेरा फोकस कंप्यूटर साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स होते थे उनमें बहुत ज़्यादा रहता था। एंड देन इसका फायदा मुझे मिला कि जैसे जैसे हम यू मूव योर ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, राइट। तो उसमें आपको मतलब बहुत वो मिलता था, एडवांटेज मिल जाता था। जैसे आई रिमेम्बर हमारे यहाँ ओपन बुक एग्जाम्स बहुत होते थे, राइट। फिर एक पोस्ट टू पाइल करके भी एग्जाम होता था जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, 24 घंटे आपके पास, आप जहाँ से लेके। तो आई फेल्ट कि ओपन बुक हो गया या कुछ हो गया तो उनमें कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होते थे, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर हो गया, राइट, रिलेटेड सिस्टम डिजाइन के सब्जेक्ट हो गए, तो वो एक एडवांटेज मुझे वहाँ पे मिलता था बिकॉज ऑफ माई लाइकनेस, कि मुझे वो ओके। सब्जेक्ट्स पसंद थे। तो मतलब मुझे होता है ना बहुत कम टाइम उनमें स्पेंड करना पड़ता था, और बाकी में मन करता नहीं था तो ऐसे ही भी आप टाइम स्पेंड नहीं करते थे, तो मतलब ठीक है, बस होता है ना कि पास पास करने कहानी लायक हो जाए, हाँ। कहानियां सुन के पास कर जाते थे। हाँ, कहानी सुन के आप पास करके किसी भी जो होता है ना टॉपर्स को पकड़ लिया, उनको बोल दिया कि भाई थोड़ा सा होता है ना, मतलब क्या गीता सार बता दो इसका, कि क्या है, क्या लिखना है, क्या नहीं, मतलब बाकी कहानियां तो हम बना ही लेते हैं फिर। इंजीनियरिंग में अगर हम आखिरी के समय, मतलब जब तीसरे तीसरे साल के अंत में या चौथे साल की बात करें, तो उस समय माहौल बहुत ही प्रेशर वाला होता है। जब हम्म, आप क्योंकि 3 साल 4 साल 3 साल आपने मजे कर लिए, सारा एंजॉयमेंट किया, पढ़ाई भी की, साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखी। फिर आती है प्लेसमेंट की बात। हम्म। तो वो कैसा रहा आपका आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, और वहां से मतलब आपने क्या सीखा वहां पे? क्या था कि लास्ट के कुछ इयर्स में कॉलेज की एक्टिविटीज में आई वाज वेरी क्लोजली इन्वॉल्व। जो कॉलेज के जो फेस्टिवल्स होते थे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते थे, उनमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था। इनफैक्ट जो हमारे कॉलेज का जो फेस्ट भी हुआ था तो आई वाज हेडिंग दी होल इवेंट मैनेजमेंट कमिटी, राइट। तो उससे एक आपको क्या मिलता है ना, एक आपके इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होते हैं। तो उस टाइम पे यू वोंट रियलाइज दिस, उस टाइम पे तो आप होता है ना मजे में मस्ती में आपने कर लिया कि चलो ये कर लोगे तो थोड़े क्लास बंक करने का वो मिल जाएगा, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा कि ठीक है, अगर अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो होता है ना कोई कुछ बोलेगा नहीं, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग नो एल्स। तो उस समय तो लोग डेफिनेटली इसको उस सीरियसनेस के, उस ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं करते हैं, बट देन इनडायरेक्टली इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग योर इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट। मेरे होता है ना कि आउटसाइड कैंपस ऑल्सो, जैसे नोएडा के कैंपस के हो गए, एंड देन गुना के कैंपस के हो गए, बहुत आज भी है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज, राइट। तो मतलब उसका रीजन ये था कि आई वाज गुड एट मेकिंग गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल। ओके। एंड देन ऑब्वियसली फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स का तो वो रहता ही है कि प्लेसमेंट सीजन शुरू हो रहा है तो सीनियर्स आपको ट्रेन करते हैं क्योंकि अब हम लोग जहाँ पे थे दैट वाज अ वेरी रिमोट सेटअप, तो हमें क्या था कि आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है,
उस समय उतने इंटरनेट पे रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, राइट? टेक्स्ट बुक ही पढ़ो, उनसे आप सीखो, फिर देन पर्सनल कोचिंग्स होते थे, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो थी वो बहुत एक्टिव रहती थी, एंड देन दे यूज्ड टू कंडक्ट सेशंस फॉर अस। बाहर के भी होता है ना कि दूसरे कैंपस से भी लोग आते थे, सीनियर्स आते थे, लाइक एंड दे यूज्ड टू टीच की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक गाइडेंस आपको मिलता था। देन उसके बाद फाइनली जब कंपनीज आनी शुरू हुई, तो आई थिंक एक दो कंपनी में तो आई वाज नॉट एलिजिबल, क्योंकि मैं 65% वाला वो नहीं क्रॉस कर पाया था फ्रॉम माई 10th एंड 12th। एलिजिबिलिटी 10th, क्राइटेरिया। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई कुड नॉट मीट, तो 60 से ऊपर वाली कंपनीज में आई वाज एलिजिबल। लेकिन उसके ऊपर वाली कंपनीज में ऑब्वियसली तो कुछ कंपनीज। रेंज बहुत कम था कि जो 60 वाली जो कंपनीज आएगी उसमें आप अपीयर होते राइट, हो सकते हैं, 65 वाले में आप नहीं हो सकते। आप नहीं हो सकते थे, हाँ। ठीक ओके। है। तो आई रिमेम्बर एक आध दो कंपनी उसके चक्कर में छूटी, एंड देन दो तीन कंपनीज में हुआ भी नहीं, राइट? मतलब आप ग्रुप डिस्कशन में आप वो जाते थे, पिछड़ जाते थे। समहाउ आई फेल्ट कि ग्रुप डिस्कशंस में वो चीजें कहीं ना कहीं वो दिख जाती थी, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था। और ग्रुप डिस्कशन एटलीस्ट इन दैट टाइम, इन दैट एरा, वाज अ वेरी कोर कॉम्पिटेंसीज जो कि आपको शो अप करना, मतलब दैट वाज एन एलिमिनेशन राउंड। तो आपने रिटर्न तो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप जीडी में आप बाहर हो जाते थे, ठीक है। अब जीडी हम्म। में कोई बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई अगर होता है ना कि अंग्रेज टाइप का आ गया, तो आप फंस गए, वो आप सारे पॉइंट्स ले जाएगा, आप बस बैठ के आप देखते रह जाओगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो मतलब दैट वाज समथिंग। तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, एस्पेक्ट, ज- कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। विच क्लियरली वाज लैगिंग। तो ठीक है, फिर आई थिंक सिक्स या सेवन कंपनीज जब आई थी, तो एट दैट टाइम आई गॉट प्लेस्ड, एंड दैट टू आई गॉट प्लेस्ड इन नोएडा। सो हमारा कुछ कुछ कंपनीज सोलन आती थी, कुछ कंपनीज नोएडा आती थी, ठीक है। तो वी हैड प्लेसमेंट्स हमारे कंबाइंड होते थे ऑल जेपी इंस्टीट्यूट्स के। हम्म। तो नोएडा में आई रिमेम्बर, तो कैरेटर वाज द कंपनी दैट हायर्ड मी। So, I would say it was a good company. Obviously, I was pretty excited. मतलब कि उसके बाद होता है ना, कुछ देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस यही है अब जो है। तो कैरेटर was my first company, I would say. But then, ओके। till the time I joined, so that company also has a history. So they acquired a different company, their name got changed, then subsequently it got acquired. So finally, I think today, in today's form, that company is known as Entity Data. So ओके। Entity Data was, my first company, if you ask, as per my relieving letter. Now moving on to your professional life, and which is the main interest of the people, and I would like you to be elaborative in a sense that most of the people who are, because whatever you have said till now, वो जर्नी बहुत सारे लोगों की होती है, Hmm. Yeah. पर जो प्रोफेशनल जर्नी जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, वो हर किसी की, एक तो 99% लोगों की वो होती भी नहीं, और जो बाकी के 1% होते हैं जिन who has these who has seen this journey, that is also of different type. So I would like you to be a bit more elaborative when you are telling about your professional life Hmm. and the challenges you are working with Amazon Web Services, which is perhaps one of the most elite software company to work for. But you said that in your engineering you were good at programming. Hmm. You knew a bit of programming, but you didn't say anything great which you did at that point of time. So that journey from joining, just preparing for Hmm. non-technical interviews and getting a job in a software company, from that place to move into the most elite software company of the world must have been a very rigorous, challenging, at times heartbreaking, at times motivating journey. So I would Right. like to know a bit more about it. How did you ended up at Amazon Web Service? Sure. Yeah. So let me start with my first company. So that was the year of 2007 when we started our career. Typically, like any other software company, any other like सर्विस कंपनी, आप जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, एंड
the allocation is pretty random, राइट? कि आपको ट्रेनिंग जावा में मिलेगी, डॉट नेट में मिलेगी, या फिर बाकी किसी में मिलेगी। आई थिंक कॉमन रहता है कि जैसे कंप्यूटर साइंस के अगर हैं ग्रेजुएट्स तो ठीक है ना, दे हैव लाइक दीज थ्री ऑप्शंस जिसके बीच वो मिलेंगी। एंड देन फिर अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास ये तीन चार ऑप्शन है। तो टिपिकली आई थिंक ये एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो हुआ करता था उस टाइम पे। तो आई वॉज एलोकेटेड डॉट नेट एज माई ट्रेनिंग सब्जेक्ट, राइट? Okay. तो मेरी जो इनिशियल जो ट्रेनिंग हुई वो डॉट नेट में हुई, करीब 1.5 महीने की ट्रेनिंग थी, राइट? वेयर वी हैड टू डेवलप एक एंड टू एंड, आपको एक पूरा एक प्रोजेक्ट बना के देना था। ऑब्वियसली यू हैड अ पार्टनर, तो दो लोगों यहाँ को पे मिलके। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जो शायद आप आगे बता भी रहे थे। 4 year of engineering, software engineering versus this 1.5 month of training in .NET. हम्म, Like how different they are, because 4 years is such a long time. One हाँ and a ये half months, just 6 weeks. राइट, So ये so आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा, पता है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा नहीं लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने कॉलेज में अगर आपने ढंग से प्रोग्रामिंग की हो, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है ना, जो हमारे जो फाइनल जो प्रोजेक्ट्स होते थे, राइट? इनफैक्ट नो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मतलब आई को ऑथर्ड अ पेपर, दैट वाज पब्लिश्ड इन IEEE व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर, राइट? एंड Mhm. दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिदम्स दैट वी हैड डेवलप। तो इनफैक्ट उन उससे भी अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो आई यूज टू हेल्प अ लॉट ऑफ माई पियर्स, मेरे क्लासमेट्स को उनके प्रोजेक्ट वर्क में, जहाँ पे प्रोग्रामिंग आ जाती है, जैसे आपको कुछ बनाना है, कुछ बना के अगर आपको डिलीवर करना है, राइट? तो आई हैड हेल्प्ड अ लॉट ऑफ देम। तो समहाउ आई हैड दैट एक्सपोजर एट दैट टाइम कि ये चीज़ ऐसे बनती है, राइट? एंड देन डॉट नेट वॉज ऑन द सिमिलर लाइन, राइट? क्योंकि कॉलेज में जब मैं वो बनाता था तो वो भी सी शार्प और इन पे ही बनता था, ठीक है? तो कॉलेज में भी जब वो जॉब में आने के बाद जब वो बनाया तो वो वही था। तो आई वुड से कि ऑब्वियसली ठीक है, things were more organized here in the training, like the way it was delivered, the way it was imparted, and the way you did all the assignments, and then you finally ended up submitting a big end-to-end project which had everything, so the learning definitely was there, but outcome wise आप देखो तो pretty much it was almost similar, right? मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ मैं इन डेप्थ गया, 1.5 महीने तक वही किया, तो ऑब्वियसली आपकी एक इन डेप्थ लर्निंग होती है एक लैंग्वेज को लेके। लेकिन ये लर्निंग, इन लर्निंग्स को आप कॉलेज में भी कवर कर सकते हो। तो मेरे साथ ये हुआ कि डॉट नेट में आई वाज ट्रेन्ड, एंड देन आई वाज वन ऑफ द कोर टॉप रैंकर्स। सो अगेन आई गॉट माय प्रोजेक्ट प्रिटी अर्ली, लाइक मतलब मेरी ट्रेनिंग इनफैक्ट खत्म भी नहीं हुई थी कि आई वाज एलोकेटेड टू अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन माय पास्ट असेसमेंट्स, और उसके बेसिस पे, राइट? अब ट्रेनिंग डॉट नेट में हुई लेकिन प्रोजेक्ट मिल गया किसी और डोमेन का, राइट? इट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। What सो was that? इट वाज आई थिंक पावर एसक्यूएल या कुछ पावर करके था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, बट देन दैट लैंग्वेज वाज सिमिलर टू व्हाट सी शार्प इज, व्हाट जावा इज, राइट? तो साइबेस का वो एक लैंग्वेज था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड आई थिंक वो लैंग्वेज उसके बाद ना, मतलब दैट वाज बंद हो लैंग्वेज, गया हाँ बंद ही हो गया, इट वाज ऑन अ डिक्लाइन। मतलब वो लैंग्वेज फिर शायद मैंने दोबारा कभी सुना नहीं, इसीलिए मुझे अभी याद भी नहीं आ पा रहा है वो, शायद राइट? तुम्हारे काम करने का वेट कर रहा था कि हाँ, once नहीं वो Kunal लैंग्वेज will बंद हुआ, हाँ नहीं, लेकिन once will फॉर्चुनेटली वो, Kunal will हाँ वो program, then फॉर्चुनेटली I'll अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट भी बंद हो गया, ठीक है? सो ये भी एक वो था, इट वाज इट इट वेंट टू अ डिफरेंट कंपनी। आई थिंक इट वेंट टू विप्रो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सो वो पूरा का पूरा अकाउंट चला गया था वो। तो दैट गेम मी एन अपॉर्चुनिटी, और हाँ मतलब फॉर्चुनेटली उसमें मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि आई डेवलप्ड समथिंग जिसके इम्प्लीमेंटेशन और उसके यूएटी एंड देन ऑल दिस थिंग्स के लिए मुझे यूएस भेजा गया था। तो इट वाज आई वाज वेरी अर्ली इन माय करियर। मैंने अगस्त में कंपनी ज्वाइन की है, सितंबर तक मेरी ट्रेनिंग चली, ठीक है? अक्टूबर से मैं प्रोजेक्ट पे आया, और आई थिंक दिसंबर में मैं यूएस चला गया था। दिसंबर जनवरी के टाइम फ्रेम में मैं मतलब विद इन 2 मंथ्स। तो एक बहुत होता है ना लोगों में, एक ये भी हो गया कि अरे मतलब ये कैसी कंपनी है जो इतनी जल्दी भेज दी। और मेरे कॉलेज के सर्कल में उसमें एक बहुत वो चल गया था कि मतलब ये क्या ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर लिया है क्या, ज्वाइन करते ही इसे भेज दिया, इतना तो कुछ तूफानी किया नहीं होगा इसने इतने इतने टाइम में, ऑब्वियसली मतलब वो तो लोग वो सही भी थे, लेकिन ठीक है, दैट वाज जस्ट आई वुड मैं से वहीं आ रहा था। कोइंसिडेंस कह लो। तो कोइंसिडेंस ही आप उसको कह लो। so for my viewers, I would like to repeat that these are once
in a while scenario which happened with Hmm. someone. It's Right. not a norm that you will It's not join a not. you will join a Uh, company and uh, you will get on site right. or especially to US in 2 months, 3 months. Like there are people who have been working for 15 years waiting for Uh, this opportunity. uh, Never happened. yeah. तो वो था तो यूएस गया एंड देन डेफिनेटली आई थिंक इट वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस जो वहाँ पे मुझे मिला इन दैट सेम टाइम फ्रेम हमारे लेमन ब्रदर के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो गया था तो कंपनी ने 250 लोगों को बस बेंच पे बिठा के रखा था कि लेमन ब्रदर का प्रोजेक्ट बस अब शुरू ही होने वाला है अगले 2-3 महीने में एंड इट हैड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज सो होता है ना कि लोग फ्रॉम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वेर प्लेस्ड कि सबको रखा गया था कि 250 लोगों का पूरा एक अच्छा खासा अकाउंट आ रहा था एंड देन पेपर वर्क एंड एवरीथिंग वाज डन बट देन अनफॉर्चुनेटली 2008 एवरीवन नोज व्हाट हैपेंड लेमन ब्रदर का जो क्रैश हुआ था राइट तो दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विथ सच इंसिडेंट इनफैक्ट वो पहली बार हुआ भी था आई थिंक इससे पहले बस एक जो हाइप प्रॉब्लम थी दैट वाज दिस 2YK प्रॉब्लम Y2K Yeah, टू two वाई Y के जो था Y हाँ जो yeah Y2K Y2K problem. हाँ तो वही एक हाइप प्रॉब्लम था उसके बाद ये लेमन ब्रदर वो 2000 का था प्रॉब्लम ये 2008 का था प्रॉब्लम इट वाज दी ओनली प्रॉब्लम जो कि मैंने सुना था या देखा था इट वाज लिटरली इट वाज प्रिटी मतलब आई सॉ मोर देन 200 folks गुड अमाउंट ऑफ माय कलीग्स गेटिंग फायर्ड ऑन अ सिंगल डे मतलब सीधा उनको बस होता है ना कि अब अकाउंट ही चला गया लेमन ब्रदर ही जब ये हो गया तो देर इज नो पॉइंट इन कीपिंग सच बेंच स्ट्रेंथ कोई आपके So, फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी नहीं थे so you were in the US at the time of नहीं नहीं आई वॉज इन इंडिया 2008, आई 9. वॉज इन इंडिया नहीं You आई वॉज इन okay? इंडिया हाँ Okay. यूएस आई जस्ट वेंट ऑन ए शॉर्ट असाइनमेंट फॉर 3 months Okay. राइट Okay. Okay. हाँ तो उसके बाद आई वॉज इन इंडिया तो उस टाइम पे ये पूरा केस हुआ था एंड देन आई Mm-hmm. सॉ माय फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ ले ऑफ्स कैसे होते थे वी वर सिटिंग ऑन ए फ्लोर एंड देन so HR BP used to come along with one of the security guards और वो randomly किसी को पिक करके लेके जाते थे and then day one was really scary for us बट 2-3 दिन के बाद से लोग मजे लेने लगे कि अब किसकी बारी राइट मतलब लोगों को वो होने लगा कि अच्छा वो आ रही है देखो देखो इस बार किसको लेके जाती है राइट तो मतलब वो HR. उस टाइप का जैसे हाँ अच्छा जैसे यमराज टाइप नहीं होता यमराज आ रहा है एंड देन एक बंदे को लेके जा रहा है तो इस टाइप से था वो माहौल तो शुरू में तो पहले फर्स्ट डे वाज रियली स्केरी एंड देन एवरीवन वाज लिटरली स्केयर्ड क्योंकि मार्केट कंडीशंस वर आल्सो नॉट गुड तो 2 दिन दूसरे तीसरे दिन के बाद से क्योंकि दे हैड टू फायर अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल 200-250 लोगों को फायर करना था तो इट वाज अ मैसिव एक्सरसाइज तो दूसरे दिन तीसरे दिन से आई रिमेम्बर मतलब लोग मजे लेने लगे थे कि ठीक है अब किसकी बारी ठीक है एंड देन वी हैड नो वर्क बस अब ऑफिस जाओ वहाँ चिल करो बैठे रहो अपनी जगह पे देखते रहो कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा है फॉर्चुनेटली जो लेफ्ट ओवर्स थे उसमें से मैं एक था So I was assigned to a different project during that time only. So they had some internal openings, so I had to go through couple of small round of interviews, and then finally I got assigned. और ये प्रोजेक्ट मेरा था ये माय क्लाइंट वाज मार्लबोरो राइट एंड देन ये एक लंबा पीरियड मैंने इस क्लाइंट के साथ बिताया था क्लोज टू आई वुड से 3 to 4 years एंड दिस वाज समथिंग व्हिच आई वुड से इट वाज द स्टेपिंग स्टोन इन माय career I would I found pretty good mentor in that team who was my team lead at that time so today also like almost every other day I have I speak with him on various topics right both related to tech related to आज के डेट में तो मतलब इट्स ऑल ओवर लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर टू टेक we both interact a lot so I can clearly call him as my I would say my mentor right he was very laborious मतलब उन्हीं से मतलब I learned a lot from him like not only work related but non work related things also Okay. so then Marlboro say in that project में again like it was again between India and US so again it was a pretty big team so I spent close to little less than 3 years in US in that whole tenure Okay. of my working with this client and then uske baad I also worked with Whirlpool on a small assignment and then one or two other clients also which was along with this client that I was working on
बेस्ड ऑन सर्टेन एलोकेशंस एंड जॉब एरियाज। उस समय क्या था कि हाँ, उस समय एक ये भी था कि L1 वीजा वाज वेरी प्रीसियस एट दैट टाइम। बहुत भर Okay. के रिजेक्शंस होते थे। आई थिंक टुडे आल्सो ये है। तो सर्विस कंपनी के लिए L1 वीजा रिसोर्स इज समथिंग हिज गोल्ड माइन, राइट। एंड दैट टू अगर आपके पास एक I-94 एक लंबा एक्सटेंडेड डेट का है ना, तो मतलब ये बहुत प्रिविलेज वाली बात होती थी। तो डेफिनेटली आई नो माय कंपनी डिडंट वांटेड मी टू कम बैक। ठीक है, उनका था कि वो मुझे उधर से ही किसी दूसरे क्लाइंट पे प्लेस कर देंगे, राइट। बट देन आई इंसिस्टेड कि नहीं, अब मुझे इंडिया वापस आना है, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि आपको आके अब शादी करनी है, देयर वेर अदर फैमिली प्रेशर, फैमिली थिंग्स। तो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू मूव बैक कि नहीं ठीक है, अब मुझे इंडिया जाना है। एंड देन इसमें हुआ This क्या। is pretty unique. Like, I see that people want to go out of India. They want to settle over there, never come back, or come back just for a short period. So wasn't it a very difficult decision that leaving a NRI life and moving back to India and start working over here again? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन। आई टेल यू सो होता क्या है ना कि जब आप बहुत फैसिनेटिंग होता है, राइट। मतलब अर्ली करियर में जब आप इंजीनियर्स रहते हैं, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस रेंज वाले, उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है कि मैं यूएस जाऊं एंड देन मैं ठीक है ना, मैं वहीं पे रहूं एंड देन आई वर्क एक क्लाइंट के साथ मैं बस बैठ जाऊं। ठीक है, मतलब होता है ना, एक सीट जमा के वहां मैं बैठ जाऊं और मैं बस यहीं बैठा रहूंगा और कहीं कोई मुझे हिलाए ना, राइट। तो इसका ना देर आर मल्टीपल फेसेट्स टू इट। मतलब और ठीक है, और मतलब कई जगह पे ना देर आर वेरी गुड वर्क दैट दे डू, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क दैट happens at on-site, it's a, I would say it's a glorified support that you give, right? it's it is called also on-site support, right? The Mm-hmm. on-site offshore जो मॉडल है उस नाम में ही है वो, एंड लिटरली वो यही हो जाता है। तो नो आई हैव सीन पीपल जो कि बस एक वहाँ की लाइफ रहने के लिए दे चूज दिस काइंड ऑफ लाइफ वेयर दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन देयर करियर। ठीक है, Did आप you यूएस में also हो। face this? मैंने शुरू में तो नहीं फेस किया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आई मीन दैट वाज वन ऑफ माय मेजर रीजन कि आई वाज लुकिंग, मतलब वर्क वाइज मुझे कुछ चैलेंजिंग वहां पे मिल नहीं रहा था, राइट। Mm-hmm. मतलब होता है ना कि यू आर मोर इनटू कोऑर्डिनेशन, यू आर मोर इनटू स्टफ विच, मतलब वो नहीं था। एंड देन उस कंपनी में ये था कि आई गॉट प्रमोटेड। आई थिंक 6 साल में मेरे 4 प्रमोशंस हुए थे, राइट। सो एसेंशियली एवरी ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई 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 गॉट ए प्रमोशन। तो वहां पे क्या होता है कि अब आप, व्हेन आई लेफ्ट दैट कंपनी आई वाज एन असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। एंड मतलब मेरा प्रमोशन भी उस समय ना ऑन साइट पे ही हुआ था, विच इज अगेन अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। बट देन व्हाट आई ऑब्वियसली आई हैड लर्नड अ लॉट। मतलब दैट इज एज आई मेंशन आल्सो कि वो प्रोजेक्ट मेरे करियर का एक जिसको कहा जाता है ना कि इट वाज पिवटल इन माय करियर, जिससे मुझ मैंने बहुत चीजें सीखी टेक्निकली। ऑब्वियसली आई लर्न अ लॉट मोर। एक्चुअली होता है ना, प्रैक्टिकली चीजें कैसे रन होती हैं, क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है व्हेन यू आर एट ऑन साइट। आपको ऑन साइट की टीम भी में भी कंट्रीब्यूशन करना है, आपको ऑफशोर की टीम में भी कंट्रीब्यूशन करना है, राइट। एंड देन इट वाज अ बिग टीम दैट आई वाज पार्ट ऑफ, राइट। तो वो भी एक एडिशनल आ जाती है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन देर वॉज अ पॉइंट टुवर्ड्स दी, मतलब जब 2 2 साल 2.5 साल हो गए ना, तो आई रियलाइज कि अब यहाँ पे ना, मतलब इट्स मेरा टेक्निकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, राइट। मतलब चीज़ें मेरे लिए बहुत इजी हो चुकी थी, और मतलब आई हैड वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप्स So, विद द so, क्लाइंट। so, so basically, the work was getting very repetitive. वर्क वॉज गेटिंग रिपीटेटिव, टेक्निकल चैलेंजेस खत्म हो गए थे। ठीक है, तो मतलब दैट काइंड ऑफ सिनेरियो में वो प्रोजेक्ट आ चुका था, राइट। तो दैट्स वेयर हुआ कि नहीं, अब होता है ना कि लेट्स मूव बैक टू इंडिया। दो आई हैड ऑप्शंस दैट आई कुड हैव सेलेक्टेड इन यूएस विद अ डिफरेंट क्लाइंट। दैट ऑप्शन Hmm. वाज गिवन टू मी। बट देन डिस्पाइट दैट, आई टोल्ड यू मेरे पास एक क्योंकि मैं छुट्टी में इंडिया आया था, तो मैंने री एंटर्ड यूएस। तो एक I-94 डेट होती है यूएस में, जो Hmm. कि आपको मिलती है, विच इज द लीगल वैलिडिटी ऑफ योर स्टे इन यूएस, राइट। Hmm. तो वो मेरे लास्ट ईयर में वो मुझे 3 साल की और मिल गई थी, राइट। तो ये मतलब मैं अगर यूएस से नहीं आता तो
मेरा वीजा डिस्पाइट खत्म हो चुका रहता, आई वाज लीगली अलाउड टू स्टे इन यूएस. ऑब्वियसली देयर आर प्रोसेसेस जहाँ पे कि कंपनी उसको रिन्यू करवाती है एंड देन वहीं से वो रिन्यू हो जाता. तो देयर वर दोज काइंड ऑफ प्रोसेसेस व्हिच वर इन प्लेस. सो दे इंसिस्टेड मी अलॉट टू कि आप दूसरे क्लाइंट पे चले जाओ, राइट, दूसरे प्रोजेक्ट्स पे आप चले जाओ, क्योंकि अब एंटिटी डेटा, आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज प्रीटी डिसेंट साइज कंपनी. इट्स अ गुड प्लेयर इन दी सर्विस इंडस्ट्रीज, आई वुड से. लेकिन टॉप 5 में डेफिनेटली ये लोग हों थे उस समय भी, right? क्योंकि because of various acquisitions and mergers that they had done, so they had projects across all the states in US, right? But then obviously फिर मैंने बताया कि एक फैमिली प्रेशर था कि नहीं अब आ जाओ, मतलब आई थिंक 5-6 साल हो गए थे मेरे करियर के. तो एज वाज आल्सो कि ठीक है अब शादी के लिए वापस आ जाओ एंड देन गेट मैरिड एंड देन यू फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू, बट फर्स्ट कम बैक टू इंडिया, राइट. तो वहां पे वो एक था, बट देन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक वो भी चलता था कि एमबीए भी कर लेते हैं, ठीक है. तो आई वाज आल्सो इन दैट माइंडसेट, राइट, कि एमबीए भी कर लेते हैं, ठीक है. इनफैक्ट जीमैट दिया भी था, राइट, बट देन स्कोर्स वेर ऑब्वियसली लाइक बैक टू But कॉलेज then, डेज टाइप से. from whatever I heard from you, you have been a very technical person since beginning, even in the schools. Computer science is the only subject, and then you are also having a successful professional life, I would say. Yeah, there were avenues to be achieved, but uh, in 6 years career to be at on-site for 3-4 years and getting to do the technology works, then how what was the reason or the mindset behind going for an MBA at that point of time? सो एमबीए में कहीं ना कहीं ये एक होता है ना कि एक से धारणा भी थी, राइट, कि इंजीनियरिंग सभी प्लस कर रहे हैं तो एमबीए. मैं भी कर लूं, हाँ, इंजीनियरिंग प्लस या एमबीए एक या बहुत अच्छा. ए, या हाँ, एक एक बहुत IIM और ISB हाँ एक इनका एक चार्म इस होता है. तरीके से, हाँ, कि आई वाज नॉट फ्रॉम अ टीयर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट. हम्म, तो एक था कि नहीं चलो एक एमबीए में कोशिश कर सकते हैं अगर एक टीयर 1 कॉलेज का एक ब्रांड लग जाए तो. एंड आई वुड से कि उस टाइम पे ना, मतलब सभी लोग करते थे ये चीज इन दैट एरा ना. तो ये बहुत कॉमन था क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट अ स्टार्टअप हब, राइट. हम्म, तो लोगों का ये था कि चलो इंजीनियरिंग कर लिया, 1-2 साल जॉब करो एंड देन फिर आप एमबीए कर लो, राइट. कुछ लोग इंडिया से करते थे, कुछ लोग बाहर से करते थे, कुछ लोग देयर वर गुड अमाउंट ऑफ फोक्स जो कि बीटेक के बाद एमएस करने या मास्टर्स करने के लिए बाहर भी चले जाते थे. तो देयर वर हम्म, मल्टीपल करियर ऑप्शंस. बट देन हाँ, ऑब्वियसली मेरे लिए ये एक वो था कि मतलब बीइंग अ वेरी स्ट्रांग टेक्निकल पर्सन, तो एक बार ये आया कि नहीं एमबीए कर लेते हैं तो थोड़ा सा और वो अच्छा हो जाएगा. सो माय फर्स्ट प्रोडक्ट कंपनी वाज पिटनी बोस, राइट. वहां so पे so मैंने so you decided to have a shift from a service based company into a product based company. सो फर्स्ट आई थिंक फोर्ड वाज अ कैप्टिव कंपनी. फोर्ड क्योंकि अपना खुद का उनका वो था, मतलब Okay. फोर्ड फोर्ड के लिए ही काम करते थे हम लोग, राइट. तो वी यूज्ड टू बिल्ड, आई वाज पार्ट ऑफ द द एक्सटेंडेड वारंटी क्लेम्स टीम. तो Mhm. उसकी जो एप्लीकेशन थी वो हम हैंडल करते थे, Okay. राइट. तो एंटिटी डेटा से फोर्ड which was from a service to a captive, and then from Ford to Pitney Bowes which was a product company. सो वहाँ पे मैंने एक जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे थे वो स्क्रैच से एक प्रोडक्ट बनाया वहाँ पे, राइट. इट वाज द शिपिंग लाइब्रेरीज दैट वी वर वर्किंग ऑन. सो वेरी लो लेटेंसी APIs, and then it was used by pretty decent size client, right. मतलब there I got to learn about the how a product company works, the technical foundation जो आपको होना चाहिए, जो आज की डेट में लोग ना सिस्टम डिजाइन कहते हैं, राइट. सो वी वर इन्वॉल्व डीपली इन बिल्डिंग दैट होल सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच. तो 3 साल का मेरा वहाँ पे स्टिंट था. एंड देन उन 3 साल में बस एक ही प्रोडक्ट के लिए काम किया, उसको एकदम स्क्रैच से बना के उसको लाइव ले गए. एंड देन फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीजें और भी हमने ऐड करी. तो दैट वाज प्रिटी मच आई वुड से बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेरा फाउंडेशन था उसको उसने एक सॉलिडिफाई कर दिया वहाँ पे. वहाँ पे ही मेरा क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ था क्योंकि क्लाउड उस समय बहुत अर्ली स्टेजेस में था कंपनीज के एडॉप्शन में. आई Mhm. थिंक ये मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 उस टाइम फ्रेम की, राइट. तो क्लाउड पे वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ मेरा, द फर्स्ट interaction where you log in into an AWS console and then you see certain things. So that was Mhm. in that company. So I got an offer from Athena Health. No. So Okay. Athena Health is a it's a healthcare product based company and From pretty US, right? decent. Yeah, from US. It's a decent size company, decent charter. अच्छा खासा उनका इंडिया में प्रेजेंस है, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, they are at various locations. So I got an offer to join in one of their teams in Bangalore.
right? And then the work that was assigned was वहाँ पे ये लोग क्लाउड माइग्रेशन शुरू कर रहे थे। तो माई चार्टर वॉज कि आपको एक जो एप्लीकेशन चल रही है इसको आपको इन हाउस से पहले क्लाउड पे लेके जाना है, एंड देन सब्सिक्वेंटली विल ऐड मोर onto those things. So वहाँ पे I first joined as an lead member of technical staff. Yeah, I would like to ask that, like, and probably it will help me also at some point of time. At what point in your career you decide that you should move from a company to another? And is money the only motivation to do that, or how much of a factor money plays into this migration from one company to another? No, definitely I think for me money never played any important role in my movements, right? I think the first जो रहा है वो obviously एक career stagnation रहा है, ठीक है। एंड देन आई वुड लाइक टू एट द पॉइंट हियर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे कि लोग आराम में आ जाते हैं कि बस एक कंपनी में हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो बस सब होता है ना कि एंड लिटरली नोएडा वाली कंपनी की मैं बात करूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत मतलब आई न्यू एंड टू एंड एवरीथिंग, राइट? क्योंकि 3 साल तक आई हैव गिवन माई स्वेट टू दैट प्रोडक्ट। मतलब बहुत टाइम मैंने डेडिकेट किया है, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में ले जा रहे थे एंड देन एक उससे पुराने प्रोडक्ट से रिप्लेस कर रहे थे। दिस वाज अ न्यू जेन प्रोडक्ट दैट वाज बिल्ड ऑन टोटली न्यू टेक्नोलॉजी। जो पुराना वाला था वो पूरे एक पुराने स्टैक पे चल रहा था। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई कस्टमर आने में टाइम लग रहा है, कोई कस्टमर्स वेर रेडी विथ मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लोड, राइट? Mm-hmm. तो इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग कर्व जो था। बट देन समहाउ जब वो चला गया, देन क्या था कि हमारा फिर मल्टी कंट्री एक्सपेंशन हो रहा, तो समहाउ आई फेल्ट कि मतलब अब माय वर्क इज गेटिंग रिडंडेंट हियर। नो, दैट्स व्हेयर आई डिसाइडेड कि ठीक है, अब नाउ इट्स टाइम टू लुक फॉर एनी अदर अपॉर्चुनिटीज। तो So ऐसा you कुछ नहीं mean था to कि say you never left a work midway which you were मिडवे, working. You have you यस you have यस, always completed that and मैं then एक made the लॉजिकल move. पॉइंट पे ला के ही तभी मैंने छोड़ा है। Okay. ठीक है, तो नोएडा That, वाली कंपनी भी मैंने इसीलिए स्विच की जब हो गया, सब कुछ प्रोडक्शन में चल गया, प्रोजेक्ट वाज स्टेबल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। अब उसके बाद ऑब्वियसली लाइक देयर इज अ प्रोडक्ट रोड मैप, राइट? बट देन हेवी लिफ्टिंग हो चुकी थी, एवरीथिंग वाज डन, ट्रैफिक वाज कमिंग, नो, वी रिड्यूस्ड जो हमें टीपीएस जो हमें अचीव करना था, जो लेटेंसी अचीव करना था, वो हमने अचीव कर लिया था। मैसिव लर्निंग थी उस पूरे जर्नी में। बट देन देयर वाज अ पॉइंट जब मुझे लगा कि नाउ इट इज गेटिंग रिडंडेंट, right? So fortunately, I have had very good managers, throughout in my career, right? If I may quote except Ford, I think all my managers were pretty great managers that I have worked with. But then, Pitney Bowes, my manager, I think I learned a lot of skills from him. Right? He was the one who used to say कि मतलब होता है ना कि तुम्हारी पीपल मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है। मतलब व्हेन आई वाज लिविंग पिटनी बोस, आई यूज्ड टू मैनेज 2 teams, मैनेज इन द सेंस लाइक आई वाज द टीम लीड फॉर 2 scrum teams, right? So pretty decent size charter I was handling there. And that's where he always used to say कि मतलब you are very good at in this all this technical management, right? Obviously, like the base comes from because you have very strong foundation technically, and then you have a very good sense for people. So combinedly I think he always used to say कि तुम मतलब इस field को में move करना। And then obviously that happened when I joined Athena Health also, right? वहां पे भी जो मैंने पहला प्रोजेक्ट जो किया, आपको एक लर्निंग कर्व मिला जब when you are लीडिंग अ टीम, when you are guiding folks। तो ये जो 3-4 महीने में जो मैंने पहला प्रोडक्ट जो उनका माइग्रेट कर दिया पूरा एंड टू एंड, सो दैट अगेन जो मेरा वहाँ पे जो मैनेजर थे ही गेव मी दिस ऑप्शन कि मतलब व्हाई डोंट यू मूव टू दिस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फील्ड, राइट? ही आल्सो सॉ कि execution was good, it was I was able to bind the team pretty well, I was able to give them the required stuff, training जो भी उन्हें चाहिए थी। जो जो इंजीनियरिंग मैनेजर्स होते हैं, their role is very much technical, राइट? तो आई डोंट वांट टू लूज दैट। मतलब मैंने एंटिटी डेटा जो छोड़ी थी वो इसीलिए छोड़ी थी कि वहां पे मुझे एक्सेल शीट पे काम मिल रहा था। so Kunal, अगर आपके प्रोफेशनल जर्नी की बात करें तो और अभी मैं आपके करंट वर्क पे नहीं आया हूं, तो अगर अब तक की बात करें, जब तक आपने एथेना हेल्थ ज्वाइन किया, इस पूरी जर्नी में what were the things which you learned, which stayed with you, which shaped you as a software professional? सबसे इम्पोर्टेंट जो था दैट वाज हार्ड वर्क, राइट? हार्ड वर्क उसके बिना आप
कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू। I- Isn't it because I see whenever such things are said to anyone, they all say it's getting all very preachy. Why you hard work? Everyone knows what's so special about it. नहीं, सी आई थिंक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना एक चीज इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो होती है कि हाउ मच यू आर कमिटेड टू योर जॉब, राइट? एंड देन योर कमिटमेंट, मतलब होता है ना कि सिर्फ बोलने से नहीं आता है, वो आपकी डिलीवरीज में दिखनी चाहिए। इफ यू लर्न दैट ट्रेट, इफ यू गेन दैट ट्रेट कि नहीं मुझे, मतलब मैंने कुछ बोला है तो चाहे कुछ हो जाए, मतलब ये मैं करके दूंगा, राइट? तो होगा क्या ना, उससे आपको दो चीजें कब कुछ एक दो चीजें होती हैं। जैसे लेट्स अज्यूम कि आपको कोई एक काम बोला गया कि आप ये काम करो, राइट? और आपने बोला कि ठीक है, ये काम मुझे करने में 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, आपने बोला, राइट? लेकिन चक्कर क्या हुआ कि वो 3 दिन का काम नहीं था, क्योंकि आपने उसको गलत एस्टिमेट किया, राइट? तो अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो लोग होंगे जो कि बोल देंगे कि ये चीज नहीं हो पा रही है, तो उसको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वट एवर इज द टाइम फ्रेम, वो आप दे दो, मैं कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 3 दिन बोला है तो 3 दिन में करके देंगे। उससे क्या होगा ना कि आपको उससे एक दर्द होगा। जब आप रातें जागोगे, जब आप वो मेहनत करोगे उसको 3 दिन में अचीव करने के लिए, तो वो दर्द आपको ये सिखाएगा कि अगली बार से 3 दिन मत बोलना इस काम के लिए, राइट? अगली बार से 4 दिन बोलना, 5 दिन बोलना, विच एवर इज द राइट थिंग टू डू, राइट? तो ये दर्द आपको वो चीज जरूर सिखाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये दर्द आपको एक, होता है ना, एक विश्वसनीय इंजीनियर बनाएगा अपने मैनेजमेंट के लिए या अपने टीम लीड के लिए या अपने जो भी मैनेजर्स के लिए, जहां पे भी है, In राइट? fact, कि I मतलब think I would take I would add that you yourself will feel better about your knowledge and understanding हाँ, and हाँ, हाँ, as a professional. हाँ। मैं अपने जितने हैं ना, जितने भी इंजीनियर्स हैं अभी, मैं सबको ये कहता हूँ कि मतलब मुझे दिखाने के लिए काम मत करो, ठीक है? या फिर क्योंकि सी, मैं तुम्हारी ग्रोथ को मॉनिटर मैं उतनी क्लोजली नहीं कर पाऊंगा जितना आप खुद कर पाओगे, राइट? तो आप जब उसको आप मॉनिटर कर रहे हो तो आपको खुद में लगना चाहिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है? बस हवा हवाई ग्रोथ की, बस मैं कर दे रहा हूँ कर दे रहा हूँ, उससे नहीं चलता है काम। सी, आई थिंक ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में हर एक तरीके के लोगों के लिए जगह है, ठीक है? आई हैव नोन पीपल जो कि, होता है ना, एक कोने में पड़े रहो चुपचाप से, ना कुछ बोलना ना कुछ सुनना। एंड देन सिमिलर टू कुछ लोग होते हैं जो कि नौकरी में जाते हैं एंड देन दे गिव 100% टू दैट, टू देयर जॉब। सी, आई थिंक समहाउ अभी क्या हो गया है ना, मतलब आई विल बी वेरी ब्लंट, बट अब क्या हो गया कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस को लेके अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। सी, समहाउ आई फील कि आपके करियर के इनिशियल डेज में ना यू डोंट हैव एनी अदर कमिटमेंट, काम के अलावा आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है? एनीथिंग दैट अ कंपनी एक्सपेक्ट कि अगर आप 8 घंटे का काम आप बोल रहे हो तो वो 8 घंटे का आपको एक 8 घंटे लाइक आउटपुट दो, राइट? आजकल लोग करने क्या लगे हैं कि 8 घंटे, जैसे हम लोग क्या करते थे जब मेरे टाइम में था, तो उस 8 घंटे को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग उसके बाद 4 या 5 घंटे लगाते थे कि वो मेरा 8 घंटा ऑप्टिमाइज हो, ठीक है? हम लोग किताबें पढ़ते थे, उस समय यूट्यूब वीडियोस नहीं हुआ करते थे, इतने ट्यूटोरियल्स नहीं हुआ करते थे, तो आपको किताब पढ़ के एक एक चीज मैनुअल से जाके आपको देखनी पड़ती थी कि कैसे चलेगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, करके देखना होगा। आज क्या है, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, आप कोड लिख दो वो आपको, प्रॉब्लम लिख दो वो पूरा का पूरा कोड दे दे रहा है, राइट? तो दीज आर थिंग्स विच विल नॉट शेप यू एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। जो इस वहम में है कि वो ये सब शॉर्टकट लेके लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ठीक है, आप एक आध हॉप आप ले सकते हो, लेकिन देयर विल बी अ नो, क्लियरली देयर विल बी अ प्लेस जहाँ पे कि आप रुक जाओगे। But तो but आपको अगर I see that you just now talked about Chat GPT. People are हम्म, very enthusiastic about it. हम्म, हम्म, कि अब तो क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल दो, पाइथन का हम्म, कोड लिख के आ जाएगा, हम्म, हम्म, इंस्टॉलेशन के लिए कोड मांगो, इंस्टॉलेशन हम्म, का कोड आ जाएगा, उसको डिप्लॉय करने का कोड मांगो, डिप्लॉयमेंट का कोड आ जाएगा। हम्म। लेकिन आप उल्टा कह रहे हो। हाँ, क्योंकि मतलब होता है ना कि आप अगर ये चीज, तो फिर आप मतलब आप एक सॉफ्ट सी, पहली बात तो आई डोंट थिंक कि ये सब जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, they'll have लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन एनीवंस लाइफ, राइट? या फिर करियर पे कोई है ये, आप इसको एक एज ए फन एलिमेंट लो, तो ये एज ए फन एलिमेंट आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देगा, राइट? आपको जो बॉयलर प्लेटिंग होता है, तो बॉयलर प्लेटिंग इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से भी है। देयर आर वेयर अदर टूल्स जो कि आपको ये कोड बॉयलर प्लेट करके देते थे, इन्होंने एक स्टेप उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, राइट? दे आर गिविंग मोर देन ए बॉयलर प्लेट कोड, ये पूरा एंड टू एंड लिख देते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर लिखने में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, राइट, वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं ला पाएगा, ठीक है? फॉर श्योर ये So कभी नहीं ला so you पाएगा। mean to say that uh, it's
get writing a code is probably the easiest part to do. What Writing to the code, write, हाँ, what to write, हम्म, what to design, what to create. हम्म, This is a more important question, and that correct, probably you are telling correct, is कि हाँ, ये artificial intelligence से नहीं पॉसिबल है। से नहीं पॉसिबल है, और अगर हम्म, उसकी यूज कर रहे हैं लोग उस सेंस में हम्म, कि ये मेरे मेरा काम कर देगा, हम्म, मैं तो वो ये गलत कर रहे हैं। राइट। सी, आई टेल यू, आप एक रेस्ट एपीआई अगर लिख रहे हो, राइट, आज तो अब तो जावा और ये सब स्टैंडर्ड्स, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, ये तो अब एट्थ नाइन्थ का पार्ट हो गए हैं, राइट। मतलब हमने तो कॉलेज में पढ़ा, या फिर सॉरी, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते भी नहीं थे। तो एक बंदा जो आठवें नौवें स्टैंडर्ड का है, वो जो कोड लिख रहा है, और एक अमेजोन का इंजीनियर जो कोड लिख रहा है, राइट, कोड के जो कोड का जो जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट होगा, कोड की जो एफिशिएंसी होगी वो, लेकिन जो बेसिक ब्लॉक्स है ना, वो वही रहेगा। वो भी रेस्ट एपीआई वैसी लिखेगा, ये भी रेस्ट एपीआई ऐसी लिखेगा। तो एज एन इंजीनियर आपका एज इसमें आता है कि आप कितनी जल्दी वो लिखते हो। एक कॉलेज का स्टूडेंट उसको लिखने में एक दिन लगाएगा, एक अमेजोन का इंजीनियर या फिर एक होता है ना, एक बहुत बढ़िया एक क्वालिफाइड इंजीनियर उसको 2 घंटे में लिख देगा। तो दैट इज योर एज, राइट। लेकिन उसके अंदर जो लॉजिक, उसके अंदर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जाएगा, वो दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑटोमेट, क्योंकि वर्ल्ड इज नॉट स्टैटिक, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज यहाँ चल रही है वो वहां पे भी चलेगी, राइट। देर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हेन यू डू नो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब होते हैं, तो एवरी डे you have to do some sort of innovation into your product, and when I say day, it सिनेरियोज can be बदलते cycles, रहे it can be सिनेरियोज cycles, it can be बदलते रहते releases, हैं। हाँ। So these artificial intelligence, they can assist you in your job, but they cannot replace your job, right? And that's what, if I if you was, if you are smart enough to use if you are use smart it enough, in। हाँ, if, हाँ। तो वही वही मैं कह रहा था कि ये एक बहुत होता है ना कि कमिंग बैक टू माय ओल्डर पॉइंट, कि एक आई हैव सीन लाइक एक थोड़ा सा ना एक हेजिटेंट आ गया है लोगों में, दे आर लिटिल हेजिटेंट इन स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। नो डाउट आज की डेट में डिस्टरबेंसेस, नॉइजेस बहुत ज्यादा हैं। आप एक बारी गूगल पे सर्च करो, या फिर आप यूट्यूब पे जाके देखो, आपको हजारों, मतलब लाखों वीडियोस मिल जाएंगे एक ही टॉपिक पे, राइट। अब कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, तो ये एक बहुत होता है ना, आप पढ़ने में लगो तो आप हो सकता है कि आप गलत चीज भी पढ़ लोगे, सही चीज भी पढ़ोगे। हमारे टाइम पे क्या था कि ये सब कुछ था ही नहीं, आपको किताब ही पढ़ना है, राइट। तो आप जो पढ़ रहे हो वो आप सही पढ़ रहे हो, या तो आप सही पढ़ रहे हो या तो आप नहीं पढ़ रहे हो। अब क्या है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि या तो आप होता है ना, आप गलत भी बहुत चीजें पढ़ लेते हो, यू हम्म यू यू टेंड टू लर्न लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, राइट। प्लस आज की डेट में एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे टाइम में 2-2 साल, एक एक 1.5-1.5 साल में जावा का एक वर्जन आता था, अब तो बहुत जल्दी जल्दी आने लगे हैं। देर आर मॉडर्न लैंग्वेजेस जो कि होता है ना, एवरी सेकेंड मंथ दे रिलीज अ न्यू वर्जन, दे रिलीज अ न्यू माइनर वर्जन, सब वर्जन, वट एवर, मतलब चेंजेस बहुत रैपिडली आते रहते हैं। जावा भी उसी हिसाब से बहुत एग्रेसिवली ग्रो किया है पिछले 4-5 साल की अगर मैं बात करूं तो, राइट। तो मतलब आपको बेसिकली यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, क्योंकि होगा क्या ना कि एक बार आपका वो बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, देन यू कैन क्रैक एनी कंपनीज। फिर मतलब होता है ना, फैंग कंपनीज का जो ड्रीम रहता है लोगों का, राइट, फॉर वेरियस रीजंस, राइट। दे पे लाइक they pay like anything, right? Matlab, it's the pay scale and all the things are, it's beyond imagination. I can tell you 95% of the folks won't even know ki what these companies pay, right? I can, because you know, are you paid enough? I'm Do you paid much more than I need. Okay, so you are paid Uh, much more than you need. Definitely, I think, I'm And telling you, like I'm telling that you, is the case. 95% of the folks, won't know, the kind of salaries that these companies pay. Okay. And you are telling you earn enough more than what you need, even when you were not after your switches have not been because of Right, uh, right, uh, money. correct. Yes, yes, yes. That's interesting. Yeah, so madam, you just you just run off, you have to just be perfect in your profession, and then everything else will fall in place. हाँ, one thing that I regret is as a developer मैंने Amazon क्यों नहीं ज्वाइन किया। Obviously, like नॉर्थ इंडिया में Amazon का एक्सपोजर कम था, वहां पे जो लोग, मतलब वहां पे ये थी ही नहीं, राइट।
आई थिंक एज ए डेवलपर मैंने होता है ना एक आध बार रिज्यूमे भी डाला था, बट फॉर किसी भी रीजन से वो सेलेक्ट हुआ नहीं, मुझे कभी कुछ कॉल वॉल आई नहीं, तो आई हैव नो एक्सपीरियंस की एज एन अमेजोन एस डी। अच्छा, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से लेके जाते हैं कि अ, सब कोई जानता है अमेजोन कितनी बड़ी कंपनी है, और उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर तक की जॉब मिलना कितना मुश्किल है। और आप तो उस समय और मुझे लगता है कि 15 साल के करियर के बाद अचानक से अमेजोन में घुसना शायद और डिफिकल्ट होगा। तो आपने इसमें अमेजोन ज्वाइन करने के पीछे कुछ अलग किया, कुछ अलग सीखा, कुछ अलग से ये की, या फिर मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपका वर्किंग पैटर्न क्या था इसके सी ज्वाइन I'll करने tell you नो ऑनेस्टली I'll tell you कि मुझे ना टेक्निकली आई हैव बीन वेरी स्ट्रांग सिंस बिगिनिंग ऑफ माय करियर। क्योंकि में? ओके। इफ यू नो गो बैक, स्कूल के टाइम से एक ही चीज था मेरा, ठीक है, दैट वाज प्रोग्रामिंग, राइट। स्कूल में वही था, कॉलेज में वही रहा, ठीक है, किसी तरीके से इसी के चक्कर में मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाते थे क्योंकि इसमें मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा होते थे, राइट। कॉलेज से मुझे, ठीक है ना, लाइन से ए प्लस मिले थे, ठीक है। देयर वर सेमेस्टर्स जहाँ पे कि लास्ट के सेमेस्टर्स में जहाँ सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पेपर्स थे, ठीक है ना, 9 पॉइंट समथिंग भी आया, लास्ट सेमेस्टर में 10 भी आया, 10 on 10, राइट। सो मतलब होता है ना कहीं ये चीज एलिवेट की है शुरू से, तो आई हैव फेल्ट दिस थिंग। स्कूल में भी इसने मुझे हेल्प की, कॉलेज में भी इसने मुझे हेल्प की, और प्रोफेशनल लाइफ में भी मेरे कोर प्रोग्रामिंग स्किल्स ने मेरी हेल्प करी है। एंड प्रोग्रामिंग इज समथिंग विच कैन टोटली बी लर्नड। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हवा हवाई नहीं है। इट्स वेरी लॉजिकल लैंग्वेज, वेरी लॉजिकली चीजें इसमें ड्राइव होती हैं, ठीक है, एंड देन तो यू वेरी मीन टू से लॉजिकली। प्रोग्रामिंग के लिए टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, इट्स ऑल यू कैन लर्न, इट इज समथिंग विच कैन बी एक्वायर्ड, यू इट डजंट नीड टू कम टू सम कम एक्सटेंट इट कैन बी ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड, टू यू। यस, टू सम एक्सटेंट इट कैन बी एक्वायर्ड। जो एज है ना, वो एज या तो प्रैक्टिस से आपको आता है, ठीक है, या फिर कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, ठीक है ना, दे आर बाय बर्थ दे आर टैलेंटेड इन वॉट एवर थिंग्स दे डू, तो कुछ को वहां से एज मिल जाता है। लेकिन जिसको नहीं मिलता है, वो लोग प्रैक्टिस से एज ले आते हैं, ठीक है। और मेरा एज जो लाया हुआ है वो मेरा प्रैक्टिस से लाया हुआ एज है, राइट। ओके। तो और अच्छा, इसके बाद फिर हुआ क्या कि जैसे जो मैंने काम पिटनी बोस में किया या फिर जो मैंने काम अथीना हेल्थ में किया, इन दो कंपनी से मैंने फाउंडेशनली इनका ना प्रोडक्ट स्क्रैच से बिल्ड किए। तो सिस्टम डिजाइन के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो मेरे एकदम थॉरोली क्लियर थे। मतलब लिटरली, मतलब मुझे होता है ना कि अमेजोन के लिए बहुत कुछ स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ी थी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, राइट। क्योंकि नो इन माय ओपिनियन आई वाज, ये था कि चलो एक बार ही होता है ना, लेट्स ट्राई आउट एंड देन फिगर आउट कि क्या है। क्योंकि बहुत प्रोसेस सुना है, ऐसा होता है वैसा होता है, नो डाउट, आई थिंक इफ यू लुक, छह इफ यू गो सात फॉर राउंड एन, इंटरव्यूज हाँ, इफ होते यू गो फॉर हैं। एन एसडीएम इंटरव्यू, नो आई हैड टू गो थ्रू 3 सिस्टम डिजाइन राउंड्स, जहाँ पे कि मुझे 3 डिफरेंट सिस्टम्स बनाने पड़े, राइट। एंड देन देयर वर वेरियस पीपल मैनेजमेंट राउंड, बिकॉज आई वाज अपियरिंग फॉर एन एसडीएम रोल। तो ये कंबाइनली रहता है, लेकिन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन है, राइट, देन आई वुड सजेस्ट एज एन एसडी भी मैंने देखा है, ठीक है ना, मतलब जिनका स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स रहता है, उनके लिए अमेजोन क्रैक करना इज नॉट या फॉर दैट मैटर एनी फैंग कंपनी क्रैक करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई मीन 4-6 महीने, दिल जस्ट प्रैक्टिस एंड दिल एक्सेल। But just for the audience, FANG means Facebook, Amazon, amazon, netflix, Netflix, and गूगल। Google. Google. Yeah. अब So, फैंग का मैंग हो गया है, क्योंकि फेसबुक इज रीनेम्ड एज मेटा, सो नो लोग okay. ऐसे अब मतलब, हाँ। So by that logic, G should be replaced बट as देन ऐसा नहीं है, पता IA. है, इस कैटेगरी की जैसे बहुत सारी और कंपनीज हैं, मे बी इंडिया में ना हो, बट एटलीस्ट इन यूएस आई थिंक देयर आर pretty good companies, pretty decent startups which are there in the the Bay Area side, which is of a similar grade, I would say, rank them So, as good as them only. so Amazon is a dream company for I Yes, think a whole lot of software professionals. right, right. So I would ask two more questions regarding this. Uh, one for some of the college graduates. Like Hmm, if I'm a college graduate and I aim to join Amazon hmm, pretty early in my career, hmm, then what are the things I should work on? hmm. See, I Suppose think it depends. I am asking this from a point of view that
I have no inherent talent. See, I think, entry point is very important. Like, at what level you want to enter Amazon. Like, SD1, SD2. No, these are our two very common entry areas. SD1 is the commonest, I think, and I would say the easiest, right? To enter as an SD1, you just need to have strong data structures, algorithms, programming skills, right? If you have this thing, then I think, to enter as an SD1 is a very clear cut way for you. SD2 में एक सिस्टम डिजाइन ऐड हो जाता है, ठीक है, तो यू हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग एट सिस्टम डिजाइन, एंड देन सिस्टम डिजाइन में लोग करते क्या है ना, आई बी ऑनेस्ट, आज की डेट में इतने कोचिंग क्लासेस आ गए हैं ना कि मतलब समहाउ दे हैव डाइल्यूटेड द होल प्रोसेस, राइट? मतलब इनसे ना आपको, एंड इन माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन आल्सो आई हैव सीन कि SD1s के केस में यू विल गेट गुड folks who are very strong in data structures and algorithm, right? See, questions क्या है ना कि questions limited है, right? I mean, it's a limited set of questions, though with some variations, people ask here and there, but इसमें होता क्या है ना कि people enter and then they are not able to perform. Very common thing that we have seen. They are not able to, they are entering as SD1, but they are not able to perform, the way it, people expects you to perform, right? Amazon So अगर होता है ना basically, कि you mean to say that because of these coaching classes, these are the things which they learn. They learn how to crack that particular question, but hmm, they don't develop the aptitude for solving they problems in don't, real yes, life. they don't, no, they develop the aptitude, but they lose on attitude, right? एक बार ज्वाइन करने के बाद बहुत सारों में ऐसा देखा गया है कि मतलब इट्स लाइक अब तो चलो, होता है ना, अमेजोन में आ गए या गूगल में आ गए या इस तरह की कंपनीज में आ गए, ठीक है, तो आई हैव conquered the world at such an early stage, right? Amazon में freshers को जो सैलरी मिलती है वो it's way beyond than it's good amount Yeah. of figures are in public domain, so anyone can look at those figures, right? And they are true figures. Mm. So तो obviously जब आपको कंपनी इतने पैसे दे रही है तो in return they'll ask you some sort of elevated performance in you, right? तो वहां पे होता क्या है कि फिर वहां पे उनकी परफॉर्मेंस फिर एक डिग्रेड हो जाती है, इट्स नॉट अप टू द मार्क तो फॉर वेरियस रीजंस। ऐसा नहीं उस कि दे आर नॉट टैलेंटेड, फोकस लूज कर जाते हैं वो लोग, ठीक है। सो हम बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ना जा करके अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो आपने एक फ्रेशर के लिए डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन और शायद एक दो कुछ और ये डेटा बोले थे, स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई थिंक ये प्रॉब्लम तीन। सॉल्विंग। हाँ, सो SD1 अगर के लिए दिस तो इज एक इनफ। एक कॉलेज का स्टूडेंट, एक कॉलेज गोइंग बीटेक स्टूडेंट अगर इन तीन चार एरिया पर फोकस करे, तो वो बिल्कुल शुरू के करियर, शुरू के सालों में ही वो अमेजन वगैरह को ट्राई राइट कर राइट सकता है। राइट राइट। मैंने बोला था कि मैं दो सवाल पूछूंगा। दूसरा मेरा ये है कि एक 8-10 साल, 12 साल, 14 साल, मतलब एक लंबे समय तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया हुआ बंदा, हम्म, जिसने शायद उस लेवल पे काम ना किया हो, अगर वो खुद को अपग्रेड करके, क्योंकि अगर वो उस लेवल पे नहीं था इसलिए वो अमेजोन नहीं ज्वाइन किया, लेकिन हम्म। अब वो अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सी, आई थिंक मतलब इट डिपेंड्स कि अगर आप कौन सा पाथ आपको लेना है, टेक्निकल आईसी रोल लेना है या फिर आपको मैनेजरियल लाइन में जाना है, राइट? आईसी रोल के लिए तो SD3s की हमारी हायरिंग ही होती है उसी रेंज में, जिस रेंज की आप बात आपने करी, राइट? उसी रेंज में हम लोग SD3s हायर करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हायर, नो, क्योंकि बहुत जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है दैट इज वेरी रिगरस। मतलब आपको एकदम बैंग ऑन होना होगा अपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे, राइट? सिस्टम डिजाइन मतलब ऐसा कि होता है ना कि आप विद इन 45 मिनट्स यू शुड बी एबल टू डिजाइन एनीथिंग दैट इज गिवन टू यू, और क्वेश्चंस बहुत रियलिस्टिक दिए जाते हैं, बहुत ढंग से पूछे जाते हैं, और ऐसे पूछे जाते हैं जो 45 मिनट में बनेंगे। अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम इज इन यू, रेदर देन पॉइंटिंग आउट एंड हिंटिंग कि नहीं ये क्वेश्चन टफ पूछ लिया, ये क्वेश्चन इजी पूछ लिया, ठीक है, थोड़े इंटरव्यूअर्स के हिसाब से वेरी करते हैं क्वेश्चंस, राइट? लेकिन बाय एंड लार्ज दे आर कैलिब्रेटेड एट द सेम लेवल, और मल्टीपल राउंड्स भी होते हैं। तो हम्म। एटलीस्ट आई नो कि अमेजोन हायरिंग को बहुत 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 ज्यादा सीरियसली लेती है, तो मतलब इट्स नॉट अ जोक, या इट्स क्योंकि वी इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम इन हायरिंग फोक्स,
राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे एक कैंडिडेट को स्क्रीन करने में 6 से 8 घंटे हमारे इंजीनियर्स के स्पेंड होते हैं, इंक्लूडिंग मैनेजर्स, राइट। तो दे आर वेरी प्रीसियस आवर्स फॉर अस। तो ये यहाँ पे कोई टाइम पास करने नहीं जाता है। एंड देन Amazon ऑलवेज goes with an mindset to hire someone, मतलब रिजेक्ट करने के माइंडसेट से नहीं जाता है। देयर विल बी एवेन्यूज, देयर विल बी हिंट्स, देयर विल बी समथिंग दैट द इंटरव्यूअर्स विल गिव इन ऑर्डर टू जस्ट कि आप सही आंसर की तरफ आप चले जाओ, सही आंसर की तरफ आप किसी तरीके से आप चले जाओ, राइट। दो फीडबैक जो कैप्चर होता है उसका एक बहुत रिग्रेस प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफाइंड प्रोसेस वेर यू हैव टू कैप्चर गुड अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। तो तो आईसी रोल के लिए तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स क्लियरली इट्स पॉसिबल। एज एन मैनेजर ऑल्सो आई थिंक मैंने ही अमेजोन 14 साल इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद ज्वाइन किया है, करीब 13 साल, 13.5 साल के बाद ज्वाइन किया है, राइट। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई वुड से अमेजोन में घुसना सबसे आसान है इन दी होल जर्नी ऑफ अमेजोन। यहाँ पे सस्टेन करना, यहाँ पे ग्रो करना, इट्स अ वेरी इट्स अ नो नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट थिंग, पोर्शन। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके। जो बाहर से लोगों को सबसे टफ लगता है, ठीक है, अंदर से जब हम्म। हम देखते हैं तो हमें वो सबसे आसान लगता है कि एंट्री इज द इजीएस्ट, मतलब क्योंकि बाहर वालों को पता नहीं है ना कि अंदर कैसे होता है। तो जब आप एंटर कर जाते हो तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो सबसे आसान था, जो मैंने, ये तो फर्स्ट स्टेप है, राइट। यहाँ उस मेरे कंपनी दिमाग में में बस एक ही शब्द आ रहा है, बता रहे हैं या डरा रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो उस कंपनी में सस्टेन करना, उस कंपनी में आगे ग्रो करना, द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी दैट यू डील विद, इट्स इमेंस, राइट। और ये आपको, मतलब यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन, ट्रेन योर माइंड, हैव योर स्किल्स इन प्लेस, मतलब यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, क्योंकि AWS इज a business that is serving millions of customers, right? So just imagine the kind of the load and the kind of volume that these services they support. तो obviously वहां पे एक चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। सो कुणाल, कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, एक यंग प्रोफेशनल के लिए आप कोई कोई एडवाइस या कोई फाइनल वर्ड्स आप कहना चाहेंगे जो उनको ध्यान में रखना चाहिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए? सी आई थिंक एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो जाती है ना, कि मतलब किसी भी यंग प्रोफेशनल को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि अगर इफ दे आर नॉट फीलिंग दैट ग्रोथ इन देमसेल्फ, राइट, देन दे आर नॉट एट द राइट प्लेस, राइट। वहां पे ये बस होता है ना कि चलो कुछ करना नहीं है, बस आराम से यहाँ बैठे रहना है, उस स्टेज में आ जाएंगे तो फिर वो कभी नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो इसीलिए यू हैव टू बी और ये फीडबैक आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके मैनेजर्स आपको जो भी फीडबैक दें, कुछ भी दें, आपको होता है ना सच्चाई का पता होना चाहिए। अगर आपको वो वास्तविकता पता है, आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छे, होता है ना, कोड लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समहाउ दैट इज ट्रू और नॉट, यू नो आप एक 360 डिग्री लुक अगर आप लोगे तो आपको वो चीज़ रियलाइज हो जाएगी। तो वो रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो रियलाइजेशन आपको हो गया ना, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली अब दो रास्ते हैं वो चुन लोगे। या तो आप उधर ही बैठे रहोगे मजे में, जैसे कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, या फिर आप एक टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड ग्रोथ की तरफ आप मूव कर लोगे, राइट। एंड देन अब तो ऐसा हो गया है ना कि आज की डेट में अब तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस कॉलेज से हो, कहाँ से हो, राइट, मतलब इट हार्डली मैटर्स। मतलब इवन व्हेन वी लुक एट रेज्यूमेज, हम लोग कॉलेजेस देखते भी नहीं है, होता है ना, मतलब दैट्स नॉट अ रिजेक्शन और एलिमिनेशन, या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है वो। तो अब वो बाउंड्रीज खुल गई हैं, इतना स्टार्टअप का कल्चर आ गया है अब, राइट। तो स्टार्टअप्स में ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑन योर एज, यू ऑन योर टोस, बिकॉज वहाँ पे स्पीड इज व्हाट मैटर्स। अमेजोन में भी कुछ हद तक यही है कि यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल एंटिटीज है, लेकिन एवरी एंटिटी वर्क एज एन देयर ओन इंडिपेंडेंट एंटिटी, मतलब अपने में एक बड़ा स्टार्टअप के बीच एक मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं, राइट। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपको अगर ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो इट्स टाइम टू मूव, ओके। राइट। एंड देन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आप कितना भी शॉर्टकट कर लो, कुछ कर लो, ये कर लो, स्मार्टनेस along with hard work is the only recipe for success। अगर कोई स्मार्ट है, अगर वो कोई हार्ड वर्क भी कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इन दोनों का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है तो आप बहुत जल्दी एक्सेलरेट करोगे अपने करियर में। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो ऑब्वियसली सक्सेस विल कम टू यू, माइट कम लिटिल लेट बट इट विल कम टू यू। अगर आप स्मार्ट रहोगे तो आप बहुत दिन तक आईटी फील्ड में आप कोड नहीं लिख पाओगे, आप दूसरी फील्ड में फिर मूव कर जाओगे। ओके। ओके कुणाल,
It was nice catching up with you after so long. Just for my audience, we are very good friends, and we have known each other for like almost like entire all our life. So Almost, yes. yeah, yeah. So and I can assure you that there was no bluff. You would have seen a different smile on me if there are. So uh, I would like to say that yes, your journey is very inspiring. I have seen the kind of hard work which you have put, and I think that you will continue to excel in your life wherever you are, whatever you are planning for future. Thank Yep. you so much. Thank you. Thanks a lot. Sure. Yep. Bye. Bye bye.